Dear students, last time we discussed concept of ring and we discussed few examples of rings. We defined ring as well. Today we will discuss few more examples of rings. So ring, this is the main concept and we are going to have more examples. So the first example we are going to discuss is about ring of Hamilton quaternions. So ring of Hamilton quaternion. This is very important ring. So before considering this ring, let's have a definition. Definition about what a Hamilton quaternion is. So an expression of the form an expression of the form अब देखिए इस किस्म की एक्सप्रेशन एक्स नॉट प्लस एक्स वन आई प्लस एक्स टू जे प्लस एक्स थ्री के, इस एक्सप्रेशन का नाम हम एक्स रख देते हैं. सो एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड हैमिल्टन्स क्वार्टरनियन is called Hamilton's quaternion. And let's see what x naught, x1, x2, x3 are, where x naught, x1, x2 and x3 are real numbers. So these are real numbers. And now let's see what I, j and k are in fact how I, j and k behave. So note that I square is equal to minus 1, j square is equal to minus 1, k square is equal to minus 1, and again note that I multiplied with j is equal to k, j multiplied with k is equal to I, and then k multiplied with I is equal to j, and j multiplied with I is equal to minus k, j multiplied with I is equal to minus k, and k multiplied with j is equal to minus I, and I multiplied with k is equal to minus j. इन रिलेशन को समझ लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, जे स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन. इट इज़ सिंपल टू रिमेंबर. फिर आई जे इज इक्वल टू के, जे के इज इक्वल टू आई, एंड देन के आई इज इक्वल टू जे. नोट कीजिए आई जे इज इक्वल टू के, देन जे आई इज इक्वल टू माइनस के, जे के इज इक्वल टू आई, then kj is equal to minus I, and then ki is equal to j,
एंड देन आई के इज इक्वल टू माइनस जे। इनको याद रखने के लिए आप ये एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जिसे आप एफएससी में भी यूज़ करते रहे हैं फॉर रिमेम्बरिंग सर्टेन रिजल्ट्स अबाउट वेक्टर्स। आप ऐसे कीजिए कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लीजिए आई जे एंड के, और ये याद रखिए कि जब आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे। जैसे आई मल्टीप्लाइड विद जे इज इक्वल टू के, जे मल्टीप्लाइड विद के इज इक्वल टू आई, एंड देन के मल्टीप्लाइड विद आई इज इक्वल टू जे। और जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो रिजल्ट्स नेगेटिव होंगे। जैसे जे मल्टीप्लाइड विद आई इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाइड विद जे इज इक्वल टू माइनस आई, एंड देन आई मल्टीप्लाइड विद के, आई मल्टीप्लाइड विद के, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आई मल्टीप्लाइड विद के इज इक्वल टू माइनस जे। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ क्वाटर्नियन। So what we are going to prove is that, so let's write it as proposition, then this will become example of a ring. So let's write it as proposition, and proposition is that the set of Hamilton's quaternions forms a ring. So the set of Hamilton's quaternions forms a ring. So let's prove that. For proof, first let's denote this set by a symbol, and let's use H for that particular symbol. So let H is equal to set of all the Hamilton's quaternions. So let H is equal to X is equal to X naught plus X1I plus X2J plus X3K, and let's qualify X0, X1, X2, X3, where X0, X1, X2, X3 are real numbers, and I, J, K satisfy conditions given above, and I, J, K satisfy above. When I say above, this means these, and I, J, K satisfy above relations or conditions. So this is set H, that is set of quaternions. We have to prove that this set is a ring, and you know that in a ring there are two binary operations. One of the binary operation we denoted by addition plus sign, and second by multiplication, and we shall prove that H is a abelian group under addition, multiplication is defined and is associative, and then multiplication is distributive over addition. So these are the conditions for H to become a ring. So first of all, let's see how we are going to define addition. So first of all, about addition. So let's take two quaternions. So let xy belong to H, so that
अब हम x और y को बाकायदा एक्सप्रेशन की शक्ल में लिख देते हैं कि सो दैट x इज़ इक्वल टू x0 प्लस x1i प्लस x2j प्लस x3k and y is equal to y0 plus y1i plus y2j plus y3k. Then we define, हम इन दोनों के लिए एडिशन डिफाइन करते हैं. देन वी डिफाइन एडिशन एज x और y इन दोनों क्वार्टरनियंस का सम या x प्लस वाई. सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डिफाइन एडिशन. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू x नॉट प्लस वाई नॉट. सिंपल सी बात है, x नॉट प्लस वाई नॉट एंड देन प्लस x1 प्लस y1 i then plus x2 plus y2 j and then plus x3 plus y3 k. तो बहुत सिंपल है. x नॉट प्लस वाई नॉट, फिर x1i प्लस y1i में से आप i कामन ले लीजिए, x2j प्लस y2j में से आप j समझिए कामन ले लिया, x3k प्लस y3k में से आप समझिए k कामन ले लिया. सो दिस इज द वे वी डिफाइन एडिशन ऑफ क्वार्टरनियंस. और आप ये नोट कीजिए कि x नॉट और y नॉट जो है ना, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो इनका सम भी रियल नंबर होगा. सो a real number plus a real number multiplied with I plus a real number multiplied with j plus a real number multiplied with k. तो ये भी इसी किस्म की एक्सप्रेशन है. सो दिस बिलोंग्स टू h. सो द सेट h is closed under addition we have defined. So therefore h is closed under addition we have defined. Therefore h is closed under addition so defined. जैसे हमने एडिशन को डिफाइन किया है, उस एडिशन के अंदर सेट h जो है वो क्लोज्ड है. सो दिस इज द वे वी डिफाइन एडिशन. सो दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन विच सेज दैट द सेट h इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. और नेक्स्ट आप जानते हैं वी हैव टू प्रूव दैट एडिशन इज एसोसिएटेड. So in second step we shall prove that addition is associative. So we come to associativity of addition. और अब जानते हैं एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें तीन एक्सप्रेशन या तीन हैमिल्टन क्वार्टरनियंस लेना होंगे. सो लेट एक्स वाई जेड बिलोंग टू h, वेयर अब हम इनको लिख लेते हैं कि x क्या है. वेयर x इज इक्वल टू x नॉट प्लस x1i प्लस x2j प्लस x3k. सो दिस इज x. y इज इक्वल टू y नॉट प्लस y1i प्लस y2j प्लस y3k and z is equal to z नॉट
प्लस Z1i प्लस Z2j plus Z3k. So these are three Hamilton quaternions. Then अभी एसोशिएट वाला देख लेना, बहुत आसान है कि अगर हम y और z को ऐड करके इसमें x ऐड करें या x और y को ऐड करके z ऐड करें, ये आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि इनको चूँकि एडिशन ऑफ रियल नंबर्स एसोशिएटिव होती है तो उसी चीज़ को इनहेरिट करते हुए इनकी एडिशन भी एसोशिएटिव होगी. देन सिंस एडिशन ऑफ real numbers is associative, therefore अगर हम y और z को ऐड करके इसमें हम x ऐड करें या हम x और y को ऐड करके इसमें हम z ऐड करें तो ये दोनों रिजल्ट्स आपस में बराबर होंगे. And this can be verified very easily and you can do that. So therefore addition of Hamilton quaternions is associative. Therefore addition as defined is associative in H. So addition is associative, we have established that, and next we come to additive identity element. So additive identity. Additive identity. So for additive identity, we note that there exists, अभी ये क्वाटर्नियन 0 प्लस 0i प्लस 0j प्लस 0k, देखिए ये भी क्वाटर्नियन है. सो देयर एग्जिस्ट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंगिंग टू H, इसका नाम भी हम फिर 0 ही रख देते हैं, कैपिटल O कह लीजिए. देयर एग्जिस्ट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंगिंग टू H सच दैट for any x naught plus x1i plus x2j plus x3k belonging to H, we have कि अगर हम 0 और x को ऐड करें, 0 प्लस x, अब मैंने ऐड करने का तरीका आपको बताया है, वो ये है कि इन दोनों को ऐड कर देंगे. सो 0 प्लस x नॉट एंड देन प्लस इन दोनों को ऐड करके i कामन ले लेंगे. सो 0 प्लस x1 i कामन, फिर इन दोनों को ऐड करके j कामन ले लेंगे, 0 प्लस x2 और j कामन, एंड देन प्लस इन दोनों को ऐड करके k कामन ले लेंगे, 0 प्लस x3 k, and this is equal to 0 plus x naught will be equal to x naught, 0 plus x1 will be equal to x1 I, 0 plus x2 will be equal to x2 j, 0 plus x3 will be equal to x3 k. तो आप देखिए x नॉट प्लस x1 i प्लस x2 j प्लस x3 k, दिस इज इक्वल टू x.
this is equal to x. And similarly we can show that similarly अगर हम x में अगर हम 0 ऐड करें तो भी जवाब x ही आएगा. And therefore we have established that कि अगर हम इस ज़ीरो क्वार्टरनियन को क्वार्टरनियन x में ऐड करें या क्वार्टरनियन x को क्वार्टरनियन ज़ीरो में ऐड करें तो दोनों सूरतों में रिजल्ट x ही आएगा. And this will be for any x belonging to H. So therefore this particular quaternion is additive identity in H. So therefore this particular quaternion जिसे हम O से रिप्रेजेंट किया है, this is 0 plus 0i plus 0j plus 0k is additive identity in H. Is additive identity in H, the set of quaternions. तो हमने एडिशन डिफाइन कर दी है, एडिशन को एसोसिएटिव प्रूव कर दिया है और एडिशन के लिहाज से एडिटिव आइडेंटिटी भी हमने इसमें इस्टेब्लिश कर दी है. सो हैविंग सेड दैट एडिटिव आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस इस्टेब्लिश करने के बाद वी हैव टू प्रूव दैट inverses exist in H. So next we come to inverse, additive inverse in fact. So existence of additive inverses. Additive inverses. So for additive inverses, let's take an element of H. So let x belongs to H, so that अब हम लिख लेते हैं कि x क्या है. So x is x naught plus x1i plus x2j प्लस x3k. अब हमने एडिटिव इन्वर्स इसका मालूम करना है, एक ऐसा क्वार्टरनियन जिसको इसके साथ ऐड करें तो रिजल्ट ज़ीरो क्वार्टरनियन आए. एंड दैट्स वेरी इजी थिंग टू से. देन देयर एग्जिस्ट माइनस x belonging to H as, अब देखिए हम ऐसे करेंगे, यही जो x हमारे पास है इसके तमाम जो रियल नंबर्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे. तो माइनस x के मान ये होंगे, माइनस x इज इक्वल टू एक्स नाट की जगह माइनस एक्स नाट, x1 की जगह माइनस x1, x2 की जगह माइनस x2 और साथ j, x3 की जगह माइनस x3 और इसके साथ k. यानी कि हमें ये क्वार्टरनियन गिवन है तो इसमें जो रियल नंबर्स से जिनसे ये एक्सप्रेशन बनी है उन रियल नंबर्स के साइन चेंज कर दीजिए सच दैट. अब ये देखिएगा अगर हम इनको ऐड करें आपस में, यानी कि अगर हम x को और माइनस x को ऐड करें देन x प्लस माइनस x is equal to x minus x naught minus x naught and then plus x1 minus x1 minus x1 और बाहर इसके I and then plus x2 minus x2
x2 माइनस x2 और बाहर इसके j एंड देन प्लस x3 माइनस x3 और outside the bracket we have k, and this is equal to, and you can see that x naught minus x naught is equal to 0 plus x1 minus x1 is equal to 0, इसके साथ I, x2 minus x2 is again 0, इसके साथ j, x3 minus x3 is equal to 0 plus 0k, and this is equal to 0 element of the set of हैमिल्टन्स क्वार्टरनियन जो हमने ज़ीरो डिफाइन किया था। और इसी तरह से सिमिलरली अगर आप चाहें तो आप इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि सिमिलरली अगर आप माइनस एक्स को एक्स में ऐड करें तो भी रिज़ल्ट हमारे पास यही आएगा, 0 प्लस 0i प्लस 0j प्लस 0k, यानी कि ये भी रिज़ल्ट 0 ही होगा। So therefore we have established that x plus minus x the way we have defined it is equal to minus x plus x, and this is equal to 0. Therefore the minus x as we have defined is additive inverse of x. So therefore minus x, the way we have defined it, minus x naught minus x1i minus x2j minus x3k is additive inverse of x. And what is x? x naught plus x1i plus x2j plus x3k. So additive inverses exist in H. Therefore additive inverses exist in H. So we have defined addition, we have showed that addition is associative, additive identity is there, each element has additive inverse, therefore H is group under addition. Therefore H is group under addition. So having done that, we have only one more condition to establish, and that is commutativity, because we have to prove that H is an abelian group, and abelian group में जो पानी ऑपरेशन है वो commutative होता है. So finally we come to commutativity. Commutativity of addition. तो इसके लिए हम दो हैमिल्टन्स क्वार्टरनियन ले लेते हैं. तो लेट xy belong to H, so that let's see what x is going to be. X is equal to x naught plus x1i plus x2j plus x3k. So this is x, and y is equal to y naught plus y1i plus y2j plus y3k. Then note that what x plus y is going to be, then x plus y is equal to x naught plus y naught, and then plus x1 plus y1
I outside the bracket, and then plus x2 plus y2, and then j outside the bracket, and then plus x3 plus y3, this one, and then k outside the bracket, and this is equal to, अब ये नोट कीजिए कि एडिशन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव होती है, तो आप चाहें तो एक्स नॉट प्लस वाई नॉट को वाई नॉट प्लस एक्स नॉट लिख सकते हैं, और इसी तरह से फिर आप x1 प्लस y1 को भी y1 प्लस x1 लिख सकते हैं, और इसी तरह से आप x2 प्लस y2 को भी आप y2 प्लस x2 लिख सकते हैं, और इसी तरह से आप x3 प्लस y3 को भी y3 प्लस x3 लिख सकते हैं कि अब ये नोट कीजिए कि ये अगर x प्लस वाई है तो ये आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, इसमें चूँकि वाई नॉट y1 y2 y3 पहले हैं तो ये फिर y प्लस एक्स है, तो नेक्स्ट पेज पर हम लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू y प्लस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू y प्लस एक्स। हेंस हमने ये बात प्रूव कर दी है कि x प्लस वाई is equal to y plus x, and therefore addition is commutative in H. Therefore the binary operation we have defined as addition is commutative in H. And therefore H is an abelian group under addition. So therefore H is an abelian group under addition. तो ये तो हमारा पहला सेट ऑफ कंडीशंस था जिसमें हमने एडिशन को डिफाइन किया और प्रूव कर दिया कि अंडर एडिशन द सेट ऑफ क्वार्टरनियंस इज an abelian group. Now we have to define multiplication, and then we have to establish that the multiplication we have defined is associative. So now we come to multiplication. So first of all we are going to define what multiplication is, and then we will establish that this is associative. So let's take two elements of H, or let's consider two quaternions. So let xy belong to H, where let's see what x is and let's see what y is, where x is equal to x naught plus x1i plus x2j plus x3k, and y is equal to y naught plus y1i plus y2j plus y3k, और बाकी आप जानते हैं कि x naught y naught x1 y1 x2 y2 x3 y3 are real numbers and I j k satisfy certain condition, certain relation, जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. Then we define अब x और y को आपस में मल्टीप्लाई करना, x और y की मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करना जो है ना, इसे आपने ज़रा गौर से देखना है. देन वी डिफाइन x मल्टीप्लाइड विद y इज इक्वल टू, अब ये बात आपने ज़रा बड़े एहतियात से, बड़े गौर से देखना है
पहले तो हम ये देखेंगे कि इनको जैसे सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से इन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो वो कौन सी टर्म्स हैं जिनके साथ आई जे के नहीं होगा। तो अब देखिए एक तो ये है कि एक्स नाट वाई नाट से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें आई जे के नहीं होगा, तो ये आएगा एक्स नाट मल्टीप्लाइड विद वाई नाट। फिर x1 y1 से मल्टीप्लाई होगा, आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई मल्टीप्लाइड विद आई इज आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -x1 y1 और इसके साथ बी आई जे के नहीं होगा। फिर x2j को जब आप y2j से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x2 मल्टीप्लाइड विद y2 j इज इक्वल टू -1। सो दिस इज इक्वल टू -x2 y2 एंड देन x3k को y3k से मल्टीप्लाई करें तो x3 मल्टीप्लाइड विद y3 k स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। सो दिस इज इक्वल टू -x3 y3। तो ये तो वो टर्म्स हैं जिनके साथ आई जे के नहीं है, तो हमने को एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज़ चीज़ें अननेसेसरी लेंथी हो जाती हैं। सो देन प्लस इसके बाद आपने ये देखना है कि जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, जब इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कौन सी टर्म्स हैं जिनके साथ आए आएगा। तो हम ऐसे करते हैं, हम ये ब्रैकेट डाल लेते हैं और इसके बाहर वो सबके साथ चूँकि आए आएगा तो आए हम कॉमन ले लेते हैं। अब हम देखते हैं वो कौन सी टर्म्स हैं जिनके साथ आए आएगा। तो पहली बात ये नोट कीजिए कि एक्स नाट को जब आप x1 आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स नाट x1 आई आएगा, आई हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा एक्स नाट y1। देन प्लस आप x1 आई को y नाट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x1 y नाट साथ आई, तो आई हमने कॉमन ले लिया तो इसको हम लिख सकते हैं फिर x1 y नाट, x1 y नाट। इसके बाद फिर आए देखिए कि जब आप j और k को मल्टीप्लाई करेंगे तो j मल्टीप्लाइड विद k इज इक्वल टू आई और k मल्टीप्लाइड विद j इज इक्वल टू -i। तो जब हम इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x2 y3 j इंटू के एंड j इंटू के इज इक्वल टू आई। तो ये आ जाएगा x2 y3 प्लस x2 y3 और वो साथ आएगा j इंटू के जो कि आई होगा, तो वो आई हमने कॉमन लेकर बाहर लिख दिया है। उसके बाद जब आप x3k को y2j से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x3 y2 kj एंड kj इज इक्वल टू -i। तो इसको हम लिख सकते हैं -x3 y2। सो -x3 y2 माइनस जो है ना वो इस वजह से कि जब आप k को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो k j जो है वो -i होगा, वो माइनस हमने यहाँ लिख दिया और i हमने बाहर कॉमन ले लिया है। एंड देन प्लस अब हम आते हैं उन एक्सप्रेशंस को, उन टर्म्स को हम अभी कंसीडर करते हैं जिनके साथ j होगा। तो वो बात भी बड़ी आसान सी है कि आप देखिए जब आप x नाट को y2j से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x नाट y2j, तो j हम कॉमन लेकर बाय लिख लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x नाट y2। सो x नाट y2 एंड देन प्लस जब आप x2j को y नाट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगा x2 y नाट j, तो j हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा प्लस x2 y नाट। सो x2 y नाट। उसके बाद j से मतलब आप जानते हैं कि जब भी आप i को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो i को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये j या -j बनेगा। और आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि let me draw that small diagram here. This is I, then j anti-clockwise direction and then k। इससे ज़रा आसानी हो जाएगी आपकी बात को समझने में, डायग्राम सामने हो हमारे। अब यहाँ देखिए कि जब हम
आई और के को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जे या माइनस जे आएगा, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस केस में नोट कीजिए कि जब आप आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 आई को y3 के से, तो ये आ जाएगा x1 y3 आई के। अब देखिए आई के साथ माइनस जे आएगा, और जब आप x3 के को y1 आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x3 y1 के आई, के आई का जे आ जाएगा। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि प्लस वाला पहले लिखा जाए। तो x3 के मल्टीप्लाइड विद y1 आई इज इक्वल टू x3 y1 के आई इज जे। सो x3 y1 प्लस x3 y1, और वो जो के आई है जो कि जे के बराबर है वो हमने कॉमन ले लिया बाहर। उसके बाद आप आ जाइए x1 आई को जब हम y3 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x1 y3 आई के माइनस जे। सो x1 y3 आई के चूँकि माइनस जे है तो ये आ जाएगा माइनस x1 y3, और जे जो है वो हमने कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट हम इनको मल्टीप्लाई करके वो टर्म्स ले लेते हैं जिनमें से के हमें कॉमन मिल सकता है, तो हम वो के कॉमन लेके बाहर लिख लेते हैं तो वो आसानी से नज़र आ रही हैं। एक तो x0 y3 के है, के कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x0 y3, एंड देन x3 y0 के, ये x3 के और y0 x3 y0 के, तो ये के आ जाएगा प्लस x3 y0। और उसके बाद आप जानते हैं जब भी आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो के आएगा या माइनस के आएगा, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो जब हम x1 आई को y3 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आई के। तो अब देखिए आई के जो है वो वी आर टॉकिंग अबाउट के इन दिस केस, सॉरी आई जे। तो जब हम x1 आई को y2 जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x1 y2 आई जे, यानी आई जे इज इक्वल टू के। सो x1 y2 प्लस x1 y2 आई जे इज इक्वल टू के, वो हमने कॉमन ले लिया हुआ है। देन x2 y1 जे आई इज इक्वल टू माइनस के। सो माइनस के का माइनस तो आप x2 y1 के साथ लिख दीजिए, तो माइनस x2 y1, और वो जो जे आई है उसकी जगह के आ जाएगा, वो हमने माइनस के माइनस हमने यहाँ लिख दिया, और के जो है वो हमने कॉमन ले लिया हुआ है। सो एक दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। सो नोट दैट कि हमने x और y को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो रिजल्ट हमारे पास आया है। रियल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो रियल नंबर आता है। सो रियल नंबर प्लस रियल नंबर मल्टीप्लाइड विद a प्लस रियल नंबर मल्टीप्लाइड विद j प्लस रियल नंबर मल्टीप्लाइड विद k। तो आप नोट कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी एक हैमिल्टन क्वार्टरनियन है। तो देयरफॉर हम इस बात को नोट कर लेते हैं कि देयरफॉर x और y को जैसे हमने मल्टीप्लाई किया है, दिस बिलोंग्स टू h, and therefore h is closed under multiplication we have defined. Therefore h is closed under multiplication the way we have defined. तो हमने मल्टीप्लिकेशन को डिफ़ाइन किया है और हमने इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया है कि कोई भी दो क्वार्टरनियंस को मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट क्वार्टरनियन ही आएगा, हैमिल्टन क्वार्टरनियन ही आएगा। So h is closed under the multiplication we have defined, and this was the first step about multiplication, that this is defined. Secondly, we have to establish that this multiplication is associative. So for associativity of multiplication हम तीन हैमिल्टन क्वार्टरनियंस ले लेते हैं। So associativity of multiplication.
तो वी कंसिडर 3 quaternions. So let x, y, h, so let x, y, z belong to h. और हम वाज़ी कर देते हैं कि व्हाट इज़ x. सो x इज इक्वल टू x0 प्लस x1i प्लस x2j प्लस x3k. y इज इक्वल टू y0 प्लस y1i प्लस y2j प्लस y3k and z is equal to z0 plus z1i plus z2j plus z3k. So these are 3 Hamilton's quaternions we have considered. अब एसोशिएटिविटी को बाकायदा मल्टीप्लाई करके इस्टेब्लिश करना थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन मुश्किल कतई नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात होगी। और ये इसलिए इस्टेब्लिश हो जाती है कि रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोशिएटिव होती है। और एक चीज़ और भी हमें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए कि ये जो आई जे के हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन भी एसोशिएटिव होती है। तो हम बस ये 2 चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के बाद हम इस बात को लिख देते हैं। और